Yesterday we have Data type. yesterday we have learned about the data types. What are the different types of data types, and how we can use the data type, and what are the importance of data type while writing the program. At the same time, we have also learned how to create a variable and what are the different types of variables. Okay, so that we have learned yesterday, and today, whatever we have learned yesterday, that we will utilize today. Okay, okay. So with the continuation of the today's class, today first of all we will start with the conditional statement, and these conditional statements are the simply we can understand that this is also called the decision making or decision statement. DECISIO, decision statements. Okay. So if I'm writing a program, and in my program I have to just make a selection that, for example, I have written a for statement, and out of the for statement, I have to just not to execute all the statement, but I have to execute the statement based on some condition. So how I can do that? And for that, we can use the decision making or decision statements. Okay. Now the second is uh, so second is in the conditional statements only. We will discuss the different types of conditional statement. First, we will discuss about the if, then we will learn if else, then next if else if, then case that is called the switch case, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स द थ्री थिंग्स ब्रेक कंटिन्यू एंड रिटर्न. ओके, ये तीनों हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे. ये सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे. If the time will be there, then we will start the loop. Otherwise, the loop will start in the next class. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So hopefully time नहीं बचेगा क्योंकि ये ज्यादा है. So आज के क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे. Okay. So let's start with the what is this conditional statement is. So as I told you, suppose I have written a 5 line of 5 statements, statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5, like that. And what I want, by default by default Java execute all the statement line by line. It will execute the first statement, then second, then third, then fourth, and then fifth. Okay, so one by one it will execute. That is called the sequential execution. मतलब एक साथ purely मतलब line by line execute करता है. But what I want कि पहला line execute करे, फिर उसके बाद चेक करे कुछ कंडीशन यदि सही हो तब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट करे. अगर कंडीशन गलत हो तो ये दोनों लाइन लास्ट का दोनों लाइन एग्जीक्यूट करे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने क्या बोला कि मैं कुछ वैल्यू दूं, वैल्यू को मेरे चेक करे, और अगर मेरा वैल्यू चेक सही हो तब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो. अगर ये मेरा वैल्यू गलत है तो लास्ट का दोनों लाइन 4 और 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो. तो ऐसा ये कब होगा सर? ये तब हो सकता है जब हम अपने फ्लो को, प्रोग्राम के फ्लो को हम कंट्रोल कर पाए. ठीक है. So our programming language uses the control statement to control the flow of execution. अगर हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी को हमें कंट्रोल वे में चलना है, तो नॉर्मली स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली कोई रोक के तो आपको बोलेगा नहीं स्पीड कम करने के लिए. तो क्या होता है, रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाता है. तो नॉर्मली कोई भी गाड़ी चलाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जब भी स्पीड ब्रेकर आएगा तो गाड़ी को स्लो करना ही होगा. ओके, सिमिलरली व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम वी यूज द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. कौन सा स्टेटमेंट? Control statement. Control statements. And what is the use of control statement? Control statement is used to control the flow of execution. Execution के flow को control करने के लिए इसको use करते हैं. So control statements are also called selection statement. कंट्रोल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं. इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, CONDITION कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, या इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं. इसको DECISI डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं. ओके, सो आइदर वी कैन से मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट के जो कहलाता है, इट इज कॉल्ड द सिलेक्शन स्टेटमेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड द सिलेक्शन स्टेटमेंट? रीजन इज as I given the example that, for example, I have the 5 statements are there, but I don't want to execute all the statements. I want to execute the particular statement based on particular condition. That is, statement 2 and 3 will be executed only the condition is true. अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तब स्टेटमेंट 2 and 3 will execute. If the condition is false, then statement 4 and 5 should be executed. So for that, what we use
selection statement. Are you getting the point? Yes. Okay. So जावा के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट है. इसमें से सबसे पहला है इफ. ओके, ये हम लोग देखेंगे इफ कैसे यूज करते हैं, इफ का क्या यूज है. इफ के बाद दूसरा स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स. थर्ड इज नेस्टेड इफ. देन फोर्थ इज इफ एल्स इफ. नेक्स्ट इज स्विच केस and next is jump statement. So one by one we will go through it and we'll also see it programmatically. Is it okay? Yes. Okay. Now we'll proceed with the if. आप ध्यान से देखिएगा. What is if? If statement. Now listen. It is a one of the simple statement that is simple decision making statement. मतलब हमने कहा कि आपको ये बताना है कि ये मैं एक नंबर देता हूँ, आपको ये बताना है कि इवन है कि नहीं है. ठीक है, आपको ये बताना है कि इवन है कि नहीं, सिर्फ आपको ये बताना इवन है. तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है ना. तो इफ क्या है, इफ इज अ सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ये सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है वेदर द सर्टेन स्टेटमेंट, अगर मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, वेदर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट. एग्जीक्यूट कब होगा, द पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू. ओके, सो ध्यान से देखिए सिंटेक्स. सिंटेक्स जब हम प्रोग्राम में इसको यूज करेंगे तो लिखेंगे इफ के अंदर वी विल यूज द इफ, एंड इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली योर कंट्रोल विल गो इनसाइड ऑफ द इफ and this statement, that is whatever the statement you have given, that will be executed. अब यहाँ पे देखिए मैंने डबल स्लैश लिखा है. व्हाट इज द यूज ऑफ डबल स्लैश इन जावा? सो इन डबल स्लैश, सुनिए, दिस डबल स्लैश इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन कमेंट. क्या बोलते हैं इसको? इसको Single बोलते line हैं, हाँ, comment. सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट. ये सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है ये एक लाइन का कमेंट है, और कमेंट का मतलब ये है कि जावा का जो इंटरप्रेटर है वो इस स्टेटमेंट को कुछ करेगा नहीं. दैट इज इट विल, दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. सो इसको लिखा क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रिटन ओनली फॉर द रेफरेंस. ठीक है, ये स्टेटमेंट किस लिए लिखा है, सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है. समझ में? ओके, अब थोड़ा सा इस फ्लो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी दिस फ्लो डायग्राम. मैं इसको एक काम करता हूँ, साइड पे. This show, see this flow diagram. In this flow diagram, what you can see is, okay. यहाँ देखिए एक आपका एक फॉर एग्जांपल इसके पहले, ये जो स्टेटमेंट है इसके पहले हो सकता है कि 2-3 और भी प्रोग्राम के कोड लिखे होंगे. ओके, इस प्रोग्राम को कोड करते करते आपको एक स्टेटमेंट मिला जहां पर कंडीशन कुछ दिया हुआ है. तो जब भी कोई कंडीशन होता है, कोई रिलेशनल ऑपरेटर वाला स्टेटमेंट होता है, तो आइदर रिलेशनल ऑपरेटर का जो जो कंडीशन होगा, कंडीशन का जो रिजल्ट होगा, आइदर इट मे बी ट्रू और आइदर इट मे बी फॉल्स. अगर ये ट्रू है, द कोड इनसाइड इफ, दैट इज अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होगा तो क्या होगा, दिस स्टेटमेंट विल बी इग्नोर्ड. ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर होगा एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अगर इस लाइन के बाहर कुछ स्टेटमेंट हो है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, इट विल मूव आउटसाइड द लूप. इज इट ओके? समझ में आई है? Yes. तो चलिए इसको कैसे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक नोटपैड ओपन करते हैं. और थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो एक सिंपल सा एक फाइल बनाते हैं. मैंने क्लास, ये दिख रहा है सबको? Yes. और मैंने एक क्लास का नाम है इफ डेमो. इफ अंडरस्कोर डेमो, ध्यान से देखना, इफ अंडरस्कोर डेमो. और फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PUBLIC, पब्लिक STATIC. जावा एक प्योर, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. कैसा लैंग्वेज है? हेलो, जावा Case इज sensitive. केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? Strictly follows the syntax. आप फॉलो द सिंटेक्स. और here the capital and small is distinguished. ओके, मैंने अगर स्मॉल a लिखा है, सुनो ध्यान से, अगर मैंने स्मॉल a लिखा है
और एक जगह कैपिटल ए लिखा है, हम तो दोनों को ए पढ़ेंगे लेकिन जावा दोनों को अलग अलग पढ़ेगा, ठीक है। सो बोथ आर डिस्टिंग्विश्ड इन जावा, सो बोथ डोंट हैव द सेम मीनिंग, इज इट ओके? सो वी हैव टू कीप इन माइंड whether we have to write in a lower case or a capital or upper case. So याद रखिएगा, कुछ चीजें अभी करते करते आपको याद हो जाएगा। तो क्लास का जब भी आप नाम देंगे, द नेम ऑफ द क्लास शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो इसीलिए मैंने आई कैपिटल लिखा है इफ डेमो का, ठीक है। आप स्मॉल में भी दे सकते हो लेकिन बेसिकली जो रूल है वो रूल के अनुसार आप चलोगे तो बेटर, इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई आल्सो, ओके। बाकी देखो, पब्लिक हमेशा स्मॉल में, स्टैटिक हमेशा स्मॉल में, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड VOID वॉइड MAIN मेन, और इसके अंदर लिखेंगे STRING स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, ARGS, ये ऐसे लिखिए, ओके। अब इसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं यहीं पे या नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर में क्या लिखना है देखो ध्यान से। मुझे एक, मैंने कल हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाना पड़ा था, तो एक फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, और ए नाम का वेरिएबल के अंदर में एक वैल्यू स्टोर कर दिया 25, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये एक स्टेटमेंट है, सेमीकोलन से बंद होगा। नाउ मुझे ये चेक करना है क्या ये 25 जो है, मैंने जो नंबर दिया है, क्या ये 15 से बड़ा है, ठीक है, क्या ये 15 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ क्या लिखेंगे कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन 15, इफ ए इज ग्रेटर देन 15, तो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, जो सिंटेक्स था, हम वी आर फॉलोइंग द सिंटेक्स ओनली, सी, सो व्हाट इज द सिंटेक्स इज इफ कंडीशन इन द ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट, देन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट द स्टेटमेंट व्हाट वी राइट। सो हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, SYS system डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, मतलब प्रिंट लाइन हमें करना है, क्या करना है, एक मैसेज आएगा ए दैट इज 25, जो आपका नंबर था 25 इज ग्रेटर देन GREATER ग्रेटर THAN देन ग्रेटर देन 15, इज इट ओके? हमें ये ऐसा मैसेज चाहिए, ये समझ में आता है आपको? हेलो, Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. ओके, अब ध्यान से देखिए, ये मैंने इफ का ब्रैकेट क्लोज किया, अब मैं बंद करता हूँ किसका ब्रैकेट, अब मैं बंद करूंगा मेन का ब्रैकेट, और एक लास्ट में एक क्लास का ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, ठीक है। मेरा फाइल अभी कंप्लीट हो गया, अब इसको सेव करते हैं। सेव कहाँ करेंगे, अपने फोल्डर में सेव करेंगे। तो मैं अभी, आज मैंने लैपटॉप दूसरा यूज किया है, तो मैं लोकेशन, ओके यही है, वो फोल्डर मैंने यहाँ भी रखा है। तो जावा के अंदर में, और फाइल का नाम रखते हैं क्या, फाइल का नाम क्या देना चाहिए, एनीवन? जावा का यदि फर्स्ट क्लास आपको याद होगा तो जावा, Demo. हाँ, इफ Demo. डेमो, इफ डेमो जैसा लिखा है कैपिटल में तो वैसे ही लिखेंगे, इफ अंडरस्कोर डेमो, इफ अंडरस्कोर डेमो, इफ अंडरस्कोर डेमो डॉट डॉट जावा, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, इसको सेव कर दिया, ठीक। अब फाइल को रन करने के लिए क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। सो CMD ओपन किया, ओके, CMD पे जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई बताएगा मुझे क्या करेंगे, मेरा फाइल कहाँ सेव है, मेरा फाइल Local disk. लोकल डिस्क कहाँ, ई में, सॉरी डी 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 में, ये अभी अब आज, सॉरी मैं एक बार चेक कर लूँ आज, क्योंकि लैपटॉप मैंने चेंज किया है, ये शायद डी में है, हाँ। डी के अंदर में कौन सा फोल्डर है, डी के अंदर में फोल्डर है शायद समर कोडिंग, तो CD, हाँ, SUMMER समर, CODING समर कोडिंग, समर कोडिंग कोई कोई फोल्डर नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा फोल्डर था। एक्चुअली मैंने लैपटॉप चेंज किया तो ध्यान में नहीं है कौन सा, हाँ, डी के अंदर में है, और डी के अंदर में है समर कोडिंग 2023, ठीक है, और इसके अंदर में आपका फाइल है, इज इट ओके? ये आपका लोकेशन, समझ में, इज इट ओके ना? Yes, sir. ओके ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हम लोग अपने फाइल पे जाते हैं, क्लोज कर दिया हमने, ओके, तो चलिए यहाँ पे जाके समर कोडिंग 2023 डी ड्राइव के अंदर में, ठीक है, ये
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। फाइल का नाम मुझे मालूम है, फाइल का नाम क्या है, इफ डेमो, है ना, इफ डेमो डॉट जावा। तो कंपाइल करने के लिए कौन सा क्या यूज करेंगे, जावा का कंपाइलर। जावा, व्हाट इज द जावा कंपाइलर, JAVA जावा सी। देन Java C. इफ डेमो, जैसे लिखा था वैसे लिखिए, इफ डेमो डॉट जावा, हाँ। एंटर करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड। ये फाइल नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, एक मिनट, फाइल डेमो डॉट जावा, ये इसी लोकेशन पे सेव हुआ है ना, एक मिनट मेरे को चेक करने का। इसको फिर से एक बार कर, ऐसा कभी प्रॉब्लम हो तो सेव एज कर लीजिए। और ये आपका डी ड्राइव में समो कोडिंग। अच्छा, प्रॉब्लम मालूम है क्या है, ध्यान से देखो प्रॉब्लम Java. क्या है। मैंने क्या सर किया था, जावा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे नीचे में डॉट जावा तो ठीक है, डॉट जावा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये चेंज करना है, और ये जावा फोल्ड समो कोडिंग के अंदर, समो कोडिंग के अंदर जावा फोल्डर के अंदर है ना। ओके हाँ, जावा के अंदर में ये फोल्डर, ठीक, सेव, यहाँ पे ये फाइल है, ठीक। सो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा CD जावा, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इसलिए वो फाइल नॉट फाउंड है। अब यहाँ पे वही सेम लिखेंगे, जावा सी इफ डेमो डॉट जावा। तो नाउ यू कैन सी आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर। इसका मतलब क्या है, फाइल इज रेडी टू रन। समझ में अभी। Yes, sir. सो आई विल राइट, आई विल कॉल द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का नाम है जावा, एंड फाइल का नाम दैट इज इफ अंडरस्कोर डेमो, ठीक। और ये रन रन किया। So you can see I'm getting the message 25 is greater than 25 is greater than 15। ये समझ में आया आपको, हेलो, यस सर। Yes. ओके, सो इज इट ओके ना, ओके। तो Yes. आगे बढ़े, ये था हमारा इफ के बारे में। अब इफ के बारे में के बाद हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स। सो यू कैन सी हियर व्हाट इज इफ एल्स इज। इफ एल्स देखा जाए तो इफ एल्स भी सिमिलर टू इफ है। इफ एल्स में क्या होता था, इफ एल्स में सुनो ध्यान से, इफ में क्या होता था, सिर्फ ओनली वी चेक द कंडीशन, अगर सही है तो कुछ आएगा, गलत है तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर यही वाला प्रोग्राम में, अगर ध्यान से देखना, अगर हमने पिछले वाले प्रोग्राम में हमने सिर्फ लिखा है कि 20 ए की वैल्यू 25 से बड़ा है तो मैसेज दो, और ए की वैल्यू 25 से छोटा है तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इफ में वो फैसिलिटी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन हमारा ट्रू है तो कुछ आए, और फॉल्स है तो कुछ और आए, ठीक है, ऐसे केसेस में वी यूज इफ एल्स। सो व्हाट इज द इफ एल्स इज, इफ एल्स इज यूज्ड टू डिसाइड which statement or block of the statement, that is the group of the statement, will be executed if the given condition is true. Otherwise, which block of the statement will be executed if the condition is false. Are you getting the point? तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, suppose we have a condition, either this condition will be true or either this condition will be false. If the condition is false, if the condition is true, then the code inside the if will be executed. If the condition is false, the statement inside the else will be executed. समझ में आया अभी। यस सर। तो यहाँ पे Yes, if sir. और else दोनों यूज करेंगे, तो ध्यान से देखो। तो if ये कंडीशन हो गया, एक ही कंडीशन कंडीशन एक ही जगह पे लिखना है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया, द फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट देखो आप, यहाँ से यहाँ, तो ये पहले हम लोग यूज करते थे, यहाँ तक यूज कर रहे थे, अब ये नया आ गया। तो ये क्या है, जो हमें कंडीशन ट्रू पे डिस्प्ले करना है वो यहाँ देंगे, जो फॉल्स पे डिस्प्ले करना है वो यहाँ देंगे। आर यू गेटिंग, यस। Yes. ओके। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ओके, इसी प्रोग्राम में सेम इफ डेमो में ही कर देते हैं। ओके, आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं इसमें, सपोज नंबर 25 दिया हुआ है, अब मुझे बड़ा चेक करना है कि क्या ये जो 25 है, यहाँ पे 25 मेरा डिस्प्ले हुआ था ना, हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते, देखो ध्यान से। ये 25 हम वेरिएबल किसके थ्रू डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हमने ए लिख दिया, ए कॉमा, ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा, और इसमें यहाँ पे मैंने ऐसे लिखी, ठीक है। तो क्या ये आउटपुट में आएगा कि नहीं, पहले देख लो, और नहीं आएगा तो उसका रीजन क्या है, उसको कैसे सही करेंगे वो भी देखते हैं। पहले इसको सेव कर लिया।
अब हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट में वापस गए, इसको फिर से एक बार कंपाइल किया क्योंकि एक बार फिर से चेंज किया है, ठीक है। अब देखो कि एरर आने लगा। एरर क्या है? इस लाइन में एरर है, system.out.println ए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये ऐसे दूसरे लैंग्वेज में तो ऐसे काम चल जाता है, लेकिन जावा में ऐसे काम नहीं चलता है। तो देखो ध्यान से फिर से, वेरिएबल और जो आपका स्ट्रिंग है दोनों के बीच में प्लस साइन लगा दिया, ठीक है, विदाउट एनी कॉमा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा कंपाइल हो गया। नाउ चेक इट। सो जावा इफ डेमो, सो वी आर गेटिंग द आंसर नाउ। नाउ पहले जो आंसर आ रहा था और अभी जो आंसर आ रहा है दोनों में सेम है, दैट इज 25 आ रहा है। प्रीवियसली वी आर एक्सेसिंग द 25 विद द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज 25 ही दिया था। अभी क्या कर रहा है, 25 को एक्सेस कर रहा है वेरिएबल के थ्रू। समझ में आ रहा है भाई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी में चेंज करना है। अगर ये 25 से बड़ा है तो मैसेज आ रहा है, अगर ये 25 से छोटा है तो क्या आना चाहिए, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे, ये देखो, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको क्लियरली पता चले। सो ये वाला पार्ट, एज पर द सिंटेक्स वी आर गोइंग, वी आर अप्लाइंग दिस वन, ठीक है। तो इफ कंडीशन हो गया, कंडीशन के अंदर हमने दिया ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। हम चाहते हैं कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो, तो उसके लिए लिखेंगे एल्स, एल्स, देन पुट अ ब्रैकेट, ओके, यू कैन पुट अ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में आप दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, दैट इज system system डॉट out डॉट प्रिंट ln, और कौन सा नंबर आपका, ए जो भी था, जो भी हमने ए की वैल्यू जो भी कुछ भी होगा वो आएगा। ए प्लस क्या है, ये इज, जो भी मैसेज आपको देना है, इज लेस देन 50। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes. ओके, अब इसको भी हम चेक करेंगे। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो क्या, कि बाद में करते हो? हेलो, बाद में करते हैं। अच्छा बाद में करते हो ना? Yes, sir. ओके, बात हाँ ठीक है, तो लेकिन किया करो। ओके, सो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक मैसेज क्या है, एरर रीच, यहाँ पे एक ब्रैकेट की मिसिंग है। ब्रैकेट क्या मिसिंग है, हमने एल्स का ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट हमें बंद नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स का ब्रैकेट भी क्लोज करना है, ठीक है, सेव किया। तो यहाँ देखिए, ठीक। अब कहोगे सर ब्रैकेट कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, तो आप ब्रैकेट को इग्नोर भी मार सकते हो। कैसे इग्नोर करते हैं ये भी देख लीजिए। अगर आपका इफ के अंदर में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना अभी, अगर आपका इफ में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा नहीं है, तो आप इसको ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एल्स में भी ऐसे ही है। अगर एल्स में, ध्यान से देखना अभी, ये इसको करके बता देते हैं। अगर एल्स में भी सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी आप ब्रैकेट हटा सकते हो। तो ये भी आपका होगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ देखो, आपको आंसर भी आ रहा है। कहने का मतलब है, अगर आपके पास इफ में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वी कैन इग्नोर द ब्रैकेट, बट इफ देयर इज मोर देन वन स्टेटमेंट इन द इफ, then it will and if you are not using the bracket, then it will consider the first statement as a part of the if, others will, it will be ignored। ओके, सो बेटर होता है कि अगर इफ के अंदर में ज्यादा स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, पुट द ब्रैकेट। समझ में आया? इसीलिए सिंटेक्स में ब्रैकेट लिखा हुआ है। तो आप ब्रैकेट प्रैक्टिस करो ब्रैकेट वाला, तो ये ज्यादा आदत बना रहेगा, तो आपका सही है। इज इट ओके? तो दोनों आपका काम करेगा, विदाउट ब्रैकेट आल्सो एंड विद ब्रैकेट आल्सो। आई होप इट इज क्लियर। Yes, Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. ओके, सो आफ्टर दिस नेक्स्ट विल सी द नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है? नेस्टेड इफ का मतलब है एक इफ स्टेटमेंट है और एक इफ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करता है, ठीक है। मतलब इफ आई हैव ए कंडीशन, कहने का मतलब है इफ आई हैव more than one condition, if I have more than one condition, what we can do is we can put one condition inside another condition। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैथ क्लास में तभी अटेंड कर सकते हो, सपोज यू आर इन क्लास 11 देन यू वांट टू अटेंड द मैथ क्लास, ओके।
सो मैथ क्लास अटेंड करने का कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप पहली बार एक पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट होगे। दूसरा कंडीशन ये है कि आप क्लास 11th में होगे। और तीसरा कंडीशन ये है कि आप पीसीएम ग्रुप के होगे। समझ में आ रहा है? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आप पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट होगे, यू हैव द वैलिड आई कार्ड। दूसरा कि आप पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट होगे। एंड थर्ड, यू मस्ट एनरोल फॉर वन पर्टिकुलर ग्रुप, देन ओनली यू कैन अटेंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो ये 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन एक के अंदर है। मतलब एक कंडीशन, पहला कंडीशन चेक होगा तभी दूसरा होगा, दूसरा होगा तभी तीसरा होगा। वी कैन नॉट चेक द थर्ड कंडीशन बिफोर चेकिंग द फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ऐसा सिचुएशन में वी कैन यूज द नेस्टेड इफ। सो व्हाट द नेस्टेड इज इफ, नेस्टेड इफ क्या होता है? और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस इफ स्टेटमेंट इनसाइड एंड इफ स्टेटमेंट। एक इफ कंडीशन के अंदर में, एक कंडीशन में के अंदर दूसरा कंडीशन। लेट्स सी द सिंटेक्स। सपोज वी हैव द टू कंडीशन। तो पहला कंडीशन चेक किया इफ कंडीशन 1, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल चेक द अनदर कंडीशन। उसके अंदर भी एक इफ कंडीशन 2, अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तब जाके ये स्टेटमेंट जो लिया हुआ है, ये जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे, दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। इज इट ओके? Yes. ओके, सो ध्यान से देखो, ये फ्लो चार्ट से आप समझ में आएगा। सपोज वी हैव रिटन अ सम स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट वी हैव चेक्ड सम कंडीशन। आइदर वो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन किस में देते हैं? इफ में। इफ का कंडीशन यदि ट्रू है, इफ का कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो सकता है ना? तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट किस में लिखेंगे? एल्स में लिखेंगे। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन विल बी चेक्ड। ओके, अगर ये ट्रू है तो सेकंड कंडीशन में चला जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में ट्रू है तो स्टेटमेंट जो 1 होगा वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? अगर पहले कंडीशन ही फॉल्स है तो सीधे स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 चेक हो रहा है और कंडीशन 2 फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 2 आपका एग्जीक्यूट होगा। सो देयर इज अ 3 स्टेटमेंट्स आर देयर, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। ठीक है, और एक नया स्टेटमेंट है। तो आप बताओगे मेरे को नया स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? If all the conditions are true देखिए, or false. दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आउटसाइड द इफ नेक्स्टेड इफ। मतलब अगर हम फॉल्स के थ्रू भी आए तो स्टेटमेंट 3 के बाद ये होगा, अगर इसके थ्रू भी आए तो भी स्टेटमेंट 2 के बाद होगा, और ऐसे आए तो भी स्टेटमेंट 1 के बाद होगा। तो ये स्टेटमेंट कंपल्सरी है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन कंडीशन किस पे लगा है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 पे। स्टेटमेंट 1 तभी होगा जब पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों ट्रू होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कब एग्जीक्यूट होगा? स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन 1 is true but condition 2 is false, and when condition 1 also false as well as the condition 2 is also false, then statement 3 will be executed. Is it okay? I hope it is clear. Yes. आगे बढ़े? Yes. Yes. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो चलिए यहाँ पे मुझे एक काम करना है कि पहले चेक करना है कि जो जो नंबर मैंने दिया है 25, ये 25 से बड़ा है, सॉरी 15 से बड़ा है। अगर 15 से बड़ा है तो मुझे चेक करना है क्या ये इवन है कि ऑड है। समझ में आ रहा है? हेलो? Yes. तो अब ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या किया है? पहले मैंने चेक किया है कि क्या वो कंडीशन 15 से बड़ा है। तो एक तो कंडीशन है, अगर है तो ये लिख के आ रहा था। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ध्यान से देखना, अभी इसको मैंने क्या किया? कमेंट करिए। सॉरी, इसको मैंने अभी कमेंट में कर दिया, तो दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी मुझे क्या करना है? अभी इसके अंदर भी एक कंडीशन और डालना है। इफ मुझे चेक करना है कि ये इवन है कि नहीं है। कोई नंबर इवन कब हो सकता है? 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल नहीं, 2 का डिविजिबल हो, है ना? 2 का तो मल्टीपल होता ही है, लेकिन मुझे चेक करना, मान लो 127 या 126 है नंबर, तो वो है कि नहीं डिविजिबल, वो मुझे चेक करना है। तो हम मल्टीपल तो नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे? डिविजिबल है कि नहीं है। समझ में आ रहा है?
Yes. अगर वो 2 का डिविजिबल है इसका मतलब है वो होगा इवन। तो लेट्स सी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो धीरे धीरे सीखते जाओगे अब कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 15 से बड़ा होना चाहिए। 15 से बड़ा है तो वो भी चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक ऑपरेटर होता है पर्सन साइन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, सो ए पर्सन साइन 2 मतलब 2 से डिविजन कर रहा है, इक्वल टू 0। ये फॉन्ट छोटा तो नहीं है, बड़ा करते हैं ये सर आपको ठीक है। ठीक है? ओके, अगर छोटा लगेगा तो बताइएगा, मैं बड़ा कर दूंगा फॉन्ट। ओके, सो ये मैंने एक कंडीशन दे दी है इसे, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, पहला इफ दिया, इफ के अंदर में एक और इफ दिया, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होगा, अगर ये है तब फिर यहाँ पे एक मैसेज है कि मैसेज दे दिया कि ये जो नंबर है इज ग्रेटर देन 15 एंड 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 आल्सो ठीक है। एंड इवन EVEN, ये मैसेज आएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो देखो ध्यान से, एक और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट, क्योंकि दो इफ का दो ब्रैकेट है। ठीक है, ये दो इफ का दो ब्रैकेट है, तो ये अंदर वाले इफ का हो गया, ये बाहर वाले इफ का हो गया। ठीक है, और ये जो एल्स लगा ये बाहर वाले का है, अगर वो नहीं है तो वो लेस देन 15 है। ठीक है, तो अब देखो, अब चेक करते हैं इसको सेव किया, अपने प्रोग्राम पे गए और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से ऐसे चेक किया। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, देखो ध्यान से क्या हुआ। हाँ, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया, देखो ध्यान से। तो नंबर क्या है, आउटपुट क्यों नहीं आया, कोई बताएगा मुझे, आउटपुट क्यों नहीं आया? कंडीशन 2 इज फॉल्स। हाँ, कंडीशन 2 इज फॉल्स, और ये स्टेटमेंट तभी प्रिंट होगा जब कंडीशन 2 भी ट्रू होगा। ठीक है, सो हम इसके अंदर तो जा रहे हैं लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नंबर जो है 15 से बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये ना हो, सुनो ध्यान से, ये अंदर वाले में भी आपको एल्स देना है तो आप एल्स दे सकते हो। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इसको इन नंबर को मान लो 126 दे दिया, 126, लेट्स चेक। ठीक है, अब हम इसको okay, you can see I'm getting getting the answer. So 26 is greater than 15 and also and even. Is it okay? So this statement will is executed only when both the condition are true. और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक if को दूसरे if के अंदर यूज किया है, तो such situation is called nested if। ये समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. ओके, कोई डाउट है किसको? No, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes. ओके, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ। अभी क्या था, हमने इफ के अंदर इफ पढ़ा था, अब पढ़ेंगे एक एल्स, एक इफ है, फिर एल्स है, फिर इफ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक कंडीशन है, ठीक है, तो मुझे ऐसे करना है कि मान लो एक कंडीशन मैंने दिया, कंडीशन वन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट हो, फॉल्स है तो दूसरा कंडीशन चेक हो, और फिर उसके अंदर ये स्टेटमेंट हो। अगर वो फॉल्स है फिर तीसरा कंडीशन चेक हो। तो इस तरह से मुझे कई सारे कंडीशन चेक करने हैं, और लेकिन कंडीशन कैसे है कि एक फॉल्स होगा तब दूसरा कंडीशन है, दूसरा फॉल्स होगा तब तीसरा है, तीसरा फॉल्स होगा तब फोर्थ है। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, एक ट्रू था तो दूसरे अंदर दूसरा इफ था, अब ऐसा नहीं है, अब है कि एक कंडीशन है, वो ट्रू था तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक चल रहा था, लेकिन फॉल्स है तो दूसरा कंडीशन चेक हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ। फर्स्ट, suppose we have some statement and after the statement there is first condition is there, this is condition 1, after either this condition will be, ये condition या तो true होगा या तो false होगा। अगर true है तो जो statement if के अंदर में दिया हुआ है तो ये execute होगा और वो बाहर निकल जाएगा। अगर ये false है तो condition दूसरा condition check होगा।
दैट इज कंडीशन 2 चेक हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन 1 है। अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो रहा है तब कंडीशन 3 चेक हो रहा है। कंडीशन 3 भी फॉल्स है तब जाके दूसरा एल्स के अंदर में जो है एल्स के अंदर में बिलोंग हो रहा है। अगर कंडीशन आप देखो ध्यान से, तो ये क्या है, एक इफ के अंदर एक इफ एल्स है, ये इफ है ये एल्स है, फिर ये इफ है फिर एल्स है, फिर ये इफ है फिर एल्स है। तो सच इज कॉल्ड और सच टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज कॉल्ड, पहले क्या लिखा, पहले लिख दिया इफ के अंदर में फिर एल्स है और एल्स के अंदर में फिर से इफ है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इफ एल्स इफ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So how to use it? To use it, I have to follow this syntax. Uh, the syntax is you have to write the if, then in the if we have to give the first condition, and then after the condition we have to give the statement what you have to execute. Then after that else, then if, then again the condition 2, then a statement, then this will go on. लास्ट में जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करोगे, एल्स प्रिंट, एल्स जो भी आपका एल्स वाला स्टेटमेंट होगा वो आप दे सकते हो। तो सपोज लेट मी गिव वन एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड। तो सपोज आई हैव अ नोटपैड हियर, सो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल नाउ। ओके, इसमें एक नया फाइल क्रिएट करते हैं और नए फाइल का नाम देते हैं क्लास इफ अंडरस्कोर एल्स, ELSE एल्स डेमो, इफ एल्स डेमो। समझा? इफ एल्स डेमो, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया और इसके अंदर में हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, STRING स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग ARGS, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना अभी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक कोई वेरिएबल लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल को कैसे यूजर से इनपुट करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन आज की क्लास में सिर्फ यही देखेंगे पहले। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वेरिएबल बनाना है, INT x इक्वल्स टू, मैंने दे दिया 20, INT x इक्वल्स टू 20। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि 20 तो दे दिया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये क्या ये 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा है तो मुझे ये चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो मुझे चेक करना है क्या ये 6 से भी डिविजिबल है। अगर नहीं है तो मुझे एक पर्टिकुलर प्रिंट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे चेक किया इफ x इज ग्रेटर देन, मैं थोड़ा बड़ा नंबर देता हूँ, x इज, इसको फॉल्स करवाना मुझे, तब आगे बढ़ेंगे ना। तो इफ x इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो ये मैंने एक मैसेज, एक कंडीशन दिया, कंडीशन 1, x इज ग्रेटर देन 30। और अगर ये ग्रेटर देन 30 है तो मेरे पास मैसेज क्या आएगा, मैसेज आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ब्रैकेट में दे दिया, ब्रैकेट में क्या दिया हमने दिया x की जो भी वैल्यू है x प्लस, और ये इसमें दे दिया इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 30। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या है, तो पहले ये ब्रैकेट इफ का पहले क्लोज करते हैं। ठीक है, इसको आप, अगर एक चीज मैंने बताया, क्या बताया कि अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट है यू डोंट नीड टू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ओके, तो आप सिंगल में भी बिना ब्रैकेट के भी कर सकते हो। चलो अभी बिना ब्रैकेट के करते हैं। ठीक है, तो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, एल्स में फिर से इफ लिखेंगे, इफ कंडीशन 2 लिखेंगे। ये थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा हम ना इसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। सो इफ मैंने क्या दिया, एल्स इफ कंडीशन क्या देना है, कंडीशन ये देना है कि क्या ये डिविजिबल है 2 से कि नहीं है। ओके, सो या 2 से या 5 से ले लेते हैं, किसी से भी ले लो। तो मुझे यहाँ पे x परसेंट साइन
5, ये देखो 5 से चेक करता हूँ, इक्वल टू 0, ठीक है, ये मुझे चेक करना है। और अगर ये यहाँ पर है ट्रू है तो एक आएगा, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अगर ये ट्रू है तो क्या मैसेज आएगा? सो इट इज डिविजिबल बाई 5, DIVISIBLE, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ओके, अगर ये नहीं है ऐसा कुछ, अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं तो क्या होगा? तो चेक करेंगे क्या वो 2 से डिविजिबल है क्या, ठीक है, तो हम चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है क्या। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे एल्स, और एक और either you can write like this, else x की वैल्यू को चेक करेंगे क्या वो 30 से बड़ा है, अगर 30 से बड़ा है तो कुछ मैसेज आएगा, अगर 30 से छोटा है तो वो चेक करेंगे क्या वो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है सॉरी 5 से डिविजिबल है, अगर 5 से डिविजिबल है तो विल गेट वन मैसेज, अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो फिर एक मैसेज चेक करेंगे कि क्या वो 2 का डिविजिबल है। सो x वर्सेस साइन 2 इक्वल टू 0, अब क्या वो 2 से डिविजिबल है क्या? अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हम एक मैसेज देंगे कि वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, इट इज 2 से डिविजिबल है मतलब इवन है, इज इवन, AVEN, इवन नंबर। अगर नहीं है, अगर वो कुछ भी नहीं है तो क्या मैसेज देंगे? एल्स, सिंपली वी राइट एल्स, और एल्स में हम एक स्टेटमेंट दे देंगे क्या, ओके, हम कुछ मैसेज देते हैं, इज नॉट ए वैलिड नंबर, is not a valid number, valid NUMBER is not a valid number, ठीक है, ऐसे ही ये मैसेज दे दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद लास्ट में जाके एक तो क्लोज किया मैंने किसका, एक क्लोज किया मेन का ब्रैकेट, और दूसरा क्लोज किया किसका, अपने क्लास का, ये दो ब्रैकेट क्लोज किए, बाकी हमने ब्रैकेट लगाया नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। Yes. Yes, sir. ओके, चलिए चेक करते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव करके अपने फोल्डर में ही सेव करते हैं। नाम क्या देंगे? नाम देंगे इफ एल्स डेमो, ओके, सो IF if else demo, demo डॉट जावा, और नीचे ऑल फाइल्स, इसको सेव किया। नाउ विल गो टू द लोकेशन, और अपने लोकेशन पे इसको हम कंपाइल करेंगे। सो कंपाइल करने के लिए जावा सी इफ एल्स अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा, नाउ देयर इज नो एरर, नाउ विल कंपाइल इट, ठीक है। सो कंपाइल करने के लिए JAVA इफ एल्स अंडरस्कोर ELLC। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक ID यूज करेंगे, ठीक है। सो आई विल टेल यू टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आल्सो एंड वी कैन अप्लाई दैट। सो ये हमने इफ एल्स सॉरी इसमें डॉट जावा नहीं लगाना है, और इसे सो यू कैन सी 20 इज डिविजिबल बाय 5, 20 इज डिविजिबल बाय 5 आ गया। ये कौन सा कंडीशन है? सेकंड कंडीशन, क्योंकि सेकंड कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू वाला आ गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes. ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 26, तो कौन सा मैसेज आएगा? 26 होगा तो It is an Even. even number. इवन Even नंबर number. होगा। तो चलो चेक करते हैं हमने, और एक बार फिर से कंपाइल करके और फिर से इसको रन कर दिया, सो यू कैन सी इट इज ए इवन नंबर। अब हम एक काम करते हैं, फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और पहले रन तो करने से पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने दिया -10, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? -10 इज इंटीजर, तो मैं -10 दे सकता हूँ, तो -10 दे दिया, ठीक है। तो -10 दे दिया, और यहाँ पे
मैं जाके इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस, आप देखो -10 इज डिविजिबल बाई 5 है, तो -10 इज डिविजिबल बाई 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं जाके कुछ नंबर देता हूँ 1, ठीक है, -1 दे दिया, सेव किया और इसको एक बार कंपाइल करके और फिर से इसको रन कर दिया। ये -1 अभी सेव नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने -1 दिया, इसको सेव कर दिया। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ रहा है आपको? यस तो सर। ये देखो, ये लास्ट वाला जो लास्ट में था, जो सबके सारे कंडीशन चेक करने के बाद अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो लास्ट में जो एल्स दिया था वो आपका पास आ गया। इट इज 1 इज नॉट ए वैलिड नंबर। आई होप इट इज क्लियर ना? यस सर। ओके, ये भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स, और सॉरी इफ एल्स इफ। नाउ आफ्टर द इफ एल्स इफ देयर इज अ स्विच केस। सो व्हाट इज द स्विच केस इज, स्विच केस कुछ ऐसा है कि मान लो आपके पास, इट इज कॉल्ड द मल्टी ब्रांचिंग। ओके, इट इज कॉल्ड द मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला कि एंटर ए नंबर, नंबर आपका 7 है, ठीक है। अगर ये 7 है, 7 छोड़ो, 7 नहीं, फॉर एग्जांपल हमने बोला एक नंबर आप इनपुट करो, या नंबर कोई एक n की कुछ वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द n यू हैव टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर मैसेज और पर्टिकुलर डे नेम। सो क्या होगा, अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, ओके, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, ओके, एंड 5 है तो फ्राइडे, और 6 है तो सैटरडे, ओके, और 7 है तो संडे। और अगर आपका 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, देन आपका इनवैलिड नंबर, ओके, ग्रेटर देन, अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 7 है तो इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ फॉर दिस आइदर वी कैन यूज इफ एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा, तो उसको थोड़ा सा काम आसान करने के लिए हम लोग स्विच केस यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्विच क्या करता है, तो व्हाट विल डू, फॉर एग्जांपल आपने कोई जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, वैल्यू को यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने n दिया तो n को यहाँ पे डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता, याद रखिएगा, स्विच केस में कोई कंडीशन नहीं देते हैं, इसीलिए एक्सप्रेशन देते हैं। नाउ अब केस क्या है, ये केस 1 क्या है, ये केस क्या है, दीज आर द केसेस। तो मैंने क्या बोला, अगर 1 है तो ये, अगर 2 है, अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो, दीज आर द केसेस। सो केस वैल्यू 1 दैट इज केस 1, देन स्टेटमेंट, फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक का मतलब अगर मंडे डिस्प्ले कर दिया तो फिर ट्यूसडे थोड़ी चेक करेगा, मंडे हो गया तो आपका प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाएगा। उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। इज इट ओके? यस सर। हाँ, सो सिमिलरली केस 2 आपका 2 हो गया, केस 3, केस 4, केस 5, इट इज गो ऑन, एंड लास्ट में आपका डिफॉल्ट मतलब ये 7 क्या ग्रेटर देन 7 होगा तो वो डिफॉल्ट हो गया। तो कोई भी ग्रेटर देन 7 नंबर होगा, ठीक है, तो वो इनवैलिड आए, ठीक है, तो उसको हम डिफॉल्ट में डाल देते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए। अभी टाइम कितना हो गया? इट इज 10:33, ओके। सो अभी दूसरा भी एक क्लास है, सो शैल वी एंड अप नाउ और शैल आई कंटिन्यू? आई विल डू वन थिंग, जस्ट कॉपी कर लिया, एक काम करते हैं, फटाफट इसको करके आपको बता देते हैं और फिर आप इसको घर में प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं इसको पूरा अभी दूसरे वाला कॉपी किया हूँ, यहाँ से पूरा इसको हटा देते हैं और नाम क्या दिया है, स्विच केस डेमो या स्विच डेमो, SWITCH, स्विच अंडरस्कोर डेमो, ठीक है, ऐसे। और इसको इसको करना कैसे है, इसको करना ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, INT x इक्वल टू 10, x इक्वल टू INT x इक्वल टू INT x इक्वल टू 10, ठीक, INT x इक्वल टू 10 दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच डालेंगे, SWITCH स्विच, और स्विच के अंदर में x को डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे लिखा केस, CASE केस 1,
केस 1 के अंदर में क्या होगा, केस 1 के अंदर में जो भी आपको स्टेटमेंट देना है, ठीक है। केस 1 में मैंने फॉर एग्जांपल हमने कर दिया कि सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट एलन के अंदर में मैंने लिखा मंडे MONDAY मंडे, ठीक है। ये हो गया और यहीं पे आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है, जैसे आपको दिखाया था मैंने सिंटेक्स में, ब्रेक, ठीक। इसी तरह से आपका केस 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका केस 2, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, दिस इज केस 2, और यहाँ पे मैंने कर दिया ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे, और ऐसे ही लास्ट में केस 2 केस 3, ये एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ओके। केस उसी के अनुसार केस बनाते हैं, ठीक है। अल्फाबेट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में अल्फाबेट भी देखेंगे इसको, ठीक है। और मान लो लास्ट में हमें अभी हम डिफॉल्ट दे रहे हैं, DEFAULT डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट में हमने एक मैसेज दे दिया, इस डिफॉल्ट में आपको ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफॉल्ट में आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो लास्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और यहाँ पे सिंपली आप स्विच का ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया इनवैलिड नंबर, INVALID इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, और ये मैं सेव कर लेता हूँ स्विच डेमो के नाम से, SWITCH स्विच अंडरस्कोर DEMO स्विच अंडरस्कोर डेमो डॉट JAVM जावा, ठीक है। और ये मैंने सेव कर दिया सर, ठीक है। इसको सेव करने के बाद नाउ आई विल रन इट, ओके। सो यहाँ पे हम जावा सी के अंदर में क्या डालें, जावा सी स्विच डेमो SW कैपिटल है SWITCH स्विच अंडरस्कोर डेमो डॉट JAVM डॉट जावा, okay, there is no error now, JAVA java SWITCH switch underscore DEMO demo, okay। so यहाँ पे क्या बोल रहा, डेमो could not find the hospital load का main, अच्छा कुछ मिसिंग है क्या, क्या दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे जो केस आपने दिया ना, मैंने स्पेस ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पे ओके, सभी डिफॉल्ट में भी ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, सब सही है, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, इसको सेव किया। एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। क्या बोला, डेमो रॉन्ग नेम स्विच डेमो, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने नाम गलत लिखा है क्या, वहाँ पे नेम कैसा दिया है डेमो, और यहाँ पे नाम क्या दिया है, अच्छा। तो यहाँ पे नाम क्या गलत हुआ है, देखो ध्यान से, कंपाइलेशन में तो सही है लेकिन रन करते समय हमने गलत नाम दिया, SWITCH कैपिटल में SWITCH स्विच अंडरस्कोर डेमो का D भी कैपिटल है, ठीक है, स्विच डेमो। अब देखो इनवैलिड नंबर समझ में आया भाई, तो मैंने नंबर क्या दिया था, नंबर दिया था 10 का कोई स्विच बनाया नहीं है, मान लो ये नंबर 1 दे दिया या नंबर 2 दे दिया या सॉरी 1 दे रहा है, 1 पे चेक करो, तो आपको आपने एक बार कंपाइल कर दिया और कंपाइल करने के बाद रन किया, अच्छा ये वाला ना, ये वाला प्रोफाइल, ये ओके। सो देखो 1 क्या था, मंडे, मंडे आई एम गेटिंग, आर यू गेटिंग, Yes, sir. ओके। सो आज की क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, आज जो भी पढ़ा है आप इसको आज प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, इज इट ओके, Yes, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, Thank you, sir. ओके थैंक यू। yes.